اگر آپ سے پوچھا جائے کہ دنیا کا امیر ترین شخص کون ہے تو آپ یقیناً نام لیں گے بل گیٹس کا یا ایلون مسک کا۔ آپ کو پتا ہے کہ مسلمانوں میں ایک ایسا صحابی گزرا ہے جس کی دولت آج بھی بلینز ٹریلینز ڈالرز بنتی ہے؟ نہیں نا۔ آج کی ویڈیو جس پہ ہم ریئیکٹ کرنے جا رہے ہیں، اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے دی ریچسٹ صحابی ایور۔ چلتے ہیں ہم اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ اس سے پہلے چینل پہ نئے ہیں، چینل پہ لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ویلکم ٹو ایم ریئیکٹنگ اینڈ لیٹس اسٹارٹ دی ویڈیو۔ دنیا کا سب سے امیر صحابی، ایک ایسا صحابی جن کی دولت آج بھی بلینز آف ڈالرز بنتی ہے، جن کا بزنس اتنا بڑا تھا کہ ایون مسلمانوں کی اتنی بڑی خلافت بھی ان سے قرضے لیتی تھی۔ اس صحابی کا نام ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں اور ان کا نام تھا عبد الرحمن بن عوف۔ خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جب مسلمانوں کی خلافت دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور تھی اور خلیفہ عثمان دنیا کے سب سے طاقتور آدمی تھے، تب اچانک ایک دن خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے اور ان کی یہ بیماری اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے آخر اعلان کیا کہ اگر میں اس بیماری سے فوت ہو گیا تو میرے بعد مسلمانوں کا نیکسٹ خلیفہ عبد الرحمن بن عوف ہوں گے۔ یہ سنتے ہی لوگ بھاگ بھاگ کر عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ آپ اسلام کے نئے خلیفہ ہوں گے۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ مجھے عثمان سے پہلے ہی موت دے دے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف اس دنیا سے چلے گئے۔ اب جب عبد الرحمن بن عوف دنیا سے چلے گئے اور ان کی پوری دولت تقسیم کرنے کا وقت آیا، یہ ایک بہت ہی یونیک منظر تھا۔ کہا جاتا ہے عبد الرحمن بن عوف کے پاس اتنا سونا تھا کہ اس سونے کو صرف توڑنے کے لیے کلاڑیاں منگوائی گئی۔ ان کے خزانوں میں 26 لاکھ گولڈ کوئنز پڑے تھے جو آج 700 ملین ڈالرز بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس 100 گھوڑے، 2000 اونٹ اور 3000 بکریاں بھی تھیں، اور پوری خلافت میں ان کے پاس بہت ساری زمینیں بھی تھیں۔ آج حضرت عبد الرحمن بن عوف کی دولت کے بارے میں دنیا میں بہت کنفیوژن ہے کہ آخر عبد الرحمن بن عوف کی اصل نیٹ ورتھ تھی کتنی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں آج کے زمانے میں ان کی دولت 60 بلین ڈالرز تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں 600 بلین ڈالرز، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی دولت 1 ٹریلین ڈالر سے بھی زیادہ تھی۔ لیکن اصل میں عبد الرحمن بن عوف کی دولت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف سے 500 سال پہلے دنیا کا سب سے امیر انسان رومن امپائر کا مارکس کریسس تھا، جس کے پاس روم میں سب سے زیادہ زمینیں تھیں اور اس کے صرف پرسنل 500 غلام تھے۔ مطلب وہ دنیا کا سب سے امیر آدمی تھا، اور کہا جاتا ہے اگر آج وہ زندہ ہوتا تو اس کے پاس 20 بلین ڈالرز ہوتے۔ لیکن اب یہ رومن امپائر مسلمانوں کی اس خلافت کے سامنے ایک چھوٹی سی عام امپائر تھی، اور مسلمانوں کی اس خلافت میں سب سے امیر آدمی عبد الرحمن بن عوف تھے۔ تو اگر عبد الرحمن بن عوف سے 500 سال پہلے دنیا کے سب سے امیر آدمی کے پاس 20 بلین ڈالرز تھے، تو آف کورس عبد الرحمن بن عوف کے پاس بھی ایٹ لیسٹ 20 بلین ڈالر سے زیادہ ہی دولت ہوگی۔ آج دنیا کا سب سے امیر مسلمان سعودی کا ولید بن طلال، This amount is so immense, so big, so huge. It's a press story. You're welcome. جس کے پاس 16 بلین ڈالرز ہے۔ مطلب اگر آج بھی عبد الرحمن بن عوف دنیا میں ہوتے تو وہ آج کے زمانے میں بھی دنیا کے سب سے امیر مسلمان ہوتے۔ لیکن اب کوشچن یہ ہے، آخر عبد الرحمن بن عوف کے پاس اتنی دولت آئی کہاں سے؟ عبد الرحمن بن عوف کا تعلق مکہ کے قریش میں بنو زہرہ قبیلے سے تھا، اور یہ وہی قبیلہ تھا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ کا تعلق تھا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، سب سے پہلے انہیں عبد الرحمن بن عوف کی ماں نے اپنے گود میں اٹھایا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال بعد مکہ میں عبد الرحمن بن عوف پیدا ہوئے۔ عبد الرحمن بن عوف کے والد مکہ کے سب سے امیر لوگوں میں سے ایک تھے، جن کا لیدر اور پرفیومز کا بزنس پورے عرب میں پھیلا ہوا تھا، جس کے لیے وہ قریش کے ساتھ سردیوں میں یمن اور گرمیوں میں شام جاتے تھے
जिसका जिक्र कुरान की सूरह कुरैश में भी है। लेकिन इन्हीं में से एक बार जब अब्दुर्रहमान बिन औफ के वालिद अपने दोस्तों के साथ एक सफर पर जा रहे थे, अरब के एक बदमाश कबीले ने उन पर हमला करके उन्हें और उनके दोस्त को मार डाला। और उनके ये दोस्त खालिद बिन वलीद के चचा थे। तो अब अपने बाप के मरने के बाद जवानी में ही अब्दुर्रहमान बिन औफ अपने पूरे कबीले के सरदार बने और मक्का में उनका सारा बिजनेस संभालने लगे। और अब अब्दुर्रहमान बिन औफ भी बिल्कुल अपने बाप की तरह बार बार यमन और शाम की तरफ बिजनेस के लिए आने जाने लगे। कहा जाता है एक बार जब अब्दुर्रहमान बिन औफ यमन में थे, वहां वो एक क्रिश्चियन आलिम के साथ मिले। उस क्रिश्चियन आलिम ने अब्दुर्रहमान बिन औफ से एक बहुत ही अजीब बात पूछी कि अब्दुर्रहमान, क्या तुम्हारे शहर मक्का में किसी ने अल्लाह का पैगंबर होने का ऐलान तो नहीं किया? जिस पर अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। और अब्दुर्रहमान बिन औफ वापस मक्का आ गए। अगले साल जब अब्दुर्रहमान बिन औफ वापस यमन गए, इस क्रिश्चियन स्कॉलर ने उनसे सेम सवाल किया। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ ने उन्हें दोबारा कहा कि मक्का में कोई भी नबी नहीं आया। तो अगले साल सर्दियों में दोबारा इसी क्रिश्चियन आलिम ने अब्दुर्रहमान से सेम क्वेश्चन तीसरी बार पूछा। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ ने फिर कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तीसरी बार उस आलिम ने कहा कि नहीं, मेरे इल्म के मुताबिक मक्का में अल्लाह के नबी के आने का वक्त हो चुका है। तो अब जल्दी से वापस जाओ और इस नबी का दीन कबूल करो। और जब तुम इस नबी से मिलो तो उन्हें मेरा ये पैगाम जरूर पहुंचाना। इस क्रिश्चियन की बातें सुनकर अब्दुर्रहमान बिन औफ हैरान हो गए। लेकिन इसकी बातें बिल्कुल सही थी, क्योंकि इससे कुछ ही अरसा पहले मक्का के एक गार में अल्लाह ने अपना आखिरी नबी चुन लिया था। अब्दुर्रहमान बिन औफ सीधा वहां से मक्का की तरफ आए और ये सारी कहानी उन्होंने अपने दोस्त अबू बकर को सुनाई। जिसके बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अब्दुर्रहमान बिन औफ को लेकर सीधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान बिन औफ को देखा, उन्होंने फरमाया, अब्दुर्रहमान, मुझे तुम्हारे चेहरे पर नूर नजर आ रहा है और जिस आदमी का पैगाम तुम मेरे लिए लाए हो वो मुझे सुना दो। अब्दुर्रहमान बिन औफ ये सुनकर हैरान रह गए और उन्हें समझ आ गई कि यही अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। और इस तरह मक्का के सबसे अमीर लोगों में से एक अब्दुर्रहमान बिन औफ ने इस्लाम कबूल कर लिया। अब तक तो अब्दुर्रहमान बिन औफ मक्का के एक अमीर बिजनेसमैन थे, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद ये सब कुछ बदलने वाला था, क्योंकि मक्का के बाकी सारे बड़े लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो चुके थे और इन नए मुसलमानों पर जुल्म करने लगे थे। आखिर हालात इतने खराब हुए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नए सहाबा को जमा किया और उन्हें कहा कि अब मक्का में रहना बहुत ही डेंजरस है। तुम सब मक्का को छोड़कर हबशा, इथियोपिया की तरफ चले जाओ, जहां एक नेक बादशाह निजाशी जरूर तुम्हारा ख्याल रखेगा। अब्दुर्रहमान बिन औफ भी इन नए मुसलमानों के साथ मक्का में अपना सब कुछ, सारा बिजनेस छोड़कर हबशा की तरफ चले गए और वहां जीरो से अपना नया बिजनेस बनाने लगे। काफी अरसा हबशा में रहने के बाद अब्दुर्रहमान बिन औफ वापस मक्का आए, जहां अब भी उनका बहुत बड़ा बिजनेस एस्टेब्लिश था। लेकिन जैसे ही वो मक्का पहुंचे, मुसलमान अब मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करने की प्लानिंग कर रहे थे, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान मक्का से मदीना की तरफ शिफ्ट होने लगे। लेकिन जब अब्दुर्रहमान बिन औफ के जाने का वक्त आया, मक्का के सारे बड़े सरदार आकर अब्दुर्रहमान बिन औफ के सामने बैठे और उनसे कहने लगे कि अगर आप भी मक्का को छोड़कर चले जाएंगे तो मक्का की सारी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। मतलब अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास इतनी दौलत थी कि उनके जाने से पूरे मक्का की इकोनॉमी क्रश हो सकती थी। लेकिन जब अब्दुर्रहमान बिन औफ ने उनकी बात नहीं मानी, उन्होंने अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने एक शर्त रखी कि अगर आप जाना चाहते हैं तो जरूर जाएं, लेकिन आपको अपना सारा बिजनेस और सारी दौलत मक्का में छोड़कर जाना होगा। अब अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु के पास दो ऑप्शंस थे, या तो मक्का में रहकर हमेशा एक रिच बिजनेसमैन की तरह आराम से अपनी जिंदगी गुजारे, और या अपना सब कुछ छोड़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना की तरफ हिजरत करें और वहां एक गरीब आदमी की तरह अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करें। तो ऑफ कोर्स अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु बगैर किसी झिझक के अपना सब कुछ मक्का में छोड़कर खाली हाथ मदीना की तरफ रवाना हुए। अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सारे मुसलमान मदीना में जमा हो गए थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मुसलमानों की एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई, जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से आने वालों को मदीना वालों के भाई बनाने लगे। इसी तरह हर मुहाजिर को
एक एक अंसारी का भाई बना दिया गया। लेकिन दो मुसलमानों को भाई बनाने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात जरूर देखते थे कि जिस मुहाजिर का इससे पहले मक्का में जो स्टेटस था, अब उसे मदीना में भी सेम स्टेटस के अंसारी का भाई बना दिया जाता था। मतलब किसान को किसान के साथ और बिजनेसमैन को बिजनेसमैन के साथ। इसीलिए जब मक्का के सबसे अमीर सहाबी अब्दुर्रहमान बिन औफ को भाई बनाने का वक्त आया, तो उनका भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना का सबसे अमीर आदमी साद बिन रबी को बनाया। जैसे ही साद बिन रबिया अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने घर लेकर गए, हजरत साद ने अब्दुर्रहमान से कहा कि मैं मदीना के सबसे अमीर लोगों में से एक हूं, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे पास जो कुछ भी है उसका आधा मैं आपको दे दूं। लेकिन अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें जवाब दिया कि नहीं, अल्लाह आपके माल को और भी बढ़ाए। मैं बस आपसे सिर्फ एक ही चीज चाहता हूं कि आप मुझे बाजार का रास्ता बताएं। तो वो अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु को मदीना के सबसे बड़े बाजार यहूदियों के बाजार लेकर गए, क्योंकि उस वक्त मदीना की सारी इकोनॉमी पर यहूदियों का कंट्रोल था। और यहूदियों के सबसे बड़े बिजनेसमैन का नाम था अबू राफे। यहूदियों ने बहुत ही चालाकी से मदीना की पूरी इकोनॉमी को अपने कंट्रोल में रखा था। जैसे ही कोई काफला मदीना के करीब पहुंचता था, तो मदीना पहुंचने से पहले ही यहूदी छुपके से जाकर सारी इंपॉर्टेंट चीजें सस्ते में खरीद लेते थे, और फिर वही काफला मदीना पहुंचकर अरबों को महंगी चीजें बेचता था। इस सब का अरबों को पता भी था, लेकिन वो यहूदियों को कुछ नहीं कह सकते थे, क्योंकि उनके सारे बड़ों ने यहूदियों से सूद पर बहुत ज्यादा कर्जे लिए हुए थे। तो अब अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वो यहूदियों की इस स्ट्रॉन्ग मार्केट में अपना बिजनेस स्टैब्लिश करें। तो अपने पहले दिन अब्दुर्रहमान बिन औफ यहूदियों की इस मार्केट में इधर उधर फिरते रहे और गौर से इस मार्केट को स्टडी करने लगे। और काफी स्टडी करने के बाद आखिर उन्हें समझ आ गई कि उन्हें कौन सा बिजनेस करना है। उन्हें समझ आ गई कि यहूदियों की इस मार्केट में उन्होंने पैसा कैसे बनाना है। लेकिन अब मसला यह था कि अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु के पास अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 1 रुपया भी नहीं था। तो वो सीधा एक मुसलमान दुकानदार के पास गए और उनके साथ एक डील की कि बगैर पैसों के अभी मैं तुमसे घी, बटर और खजूर लेकर जाऊंगा, और उन्हें अपने तरीके से बेचकर शाम को तुम्हारे पूरे पैसे तुम्हें लौटा दूंगा, और प्रॉफिट हम दोनों का आधा आधा होगा। मतलब प्रोडक्ट तुम्हारा और मार्केटिंग मेरी। ऐसे बिजनेस को आज तक प्रॉफिट शेयरिंग बिजनेस या मुदारिबा कहा जाता है। ये चीजें लेकर अब्दुर्रहमान बिन औफ मदीना की इस मार्केट में फिरते रहे, और किसी तरह इन चीजों को बेचकर उन्होंने थोड़ा सा प्रॉफिट कमाया, अपने पार्टनर को पूरे पैसे वापस दिए, और अपने प्रॉफिट से कुछ खाने पीने की चीजें खरीदकर अपने भाई साद बिन रबी के घर लेकर गए। साद बिन रबी ये देखकर हैरान रह गए कि जिस बंदे के पास सुबह कुछ भी नहीं था, शाम को वो उल्टा हमारे लिए खाने की चीजें लेकर आया। इसी तरह अब्दुर्रहमान बिन औफ हर दिन यहूदियों की इस मार्केट जाने लगे और थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमाने लगे। कुछ अरसा गुजरने के बाद अब्दुर्रहमान बिन औफ ने सोचा कि क्यों ना मैं इस बटर और खजूर को मिलाकर इससे एक मशहूर अरब स्वीट डिश बनाऊं, जिसे हैस कहा जाता था। तो उन्होंने ऐसा ही किया, और इससे अब्दुर्रहमान बिन औफ के प्रॉफिट्स डबल हो गए। जैसे अब्दुर्रहमान बिन औफ की दौलत थोड़ी बढ़ने लगी, एक दिन वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कपड़ों पर कुछ सेलिब्रेशन के निशान देखे, तो अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें बताया कि मैंने शादी कर ली है। मक्का से आने वाले सारे मुहाजिरों में अब्दुर्रहमान बिन औफ पहले आदमी थे जिन्होंने मदीना में शादी की थी, क्योंकि हजरत उस्मान के बाद सिर्फ अब्दुर्रहमान बिन औफ ही शादी करना अफोर्ड कर सकते थे। शादी के बाद भी अब्दुर्रहमान बिन औफ का बिजनेस बढ़ता रहा, और अब वो अपने बाकी बिजनेसेस के साथ साथ घोड़ों का बिजनेस भी करने लगे, और मदीना के लोग उनसे घोड़े खरीदने लगे। यहाँ पर अब्दुर्रहमान बिन औफ ने एक बात नोट की कि जब भी कोई उनसे घोड़ा खरीदने आता है, उन्हें उस घोड़े के साथ साथ घोड़े के सैडल्स और बाकी चीजों की भी जरूरत होती है। तो अब ऑफ कोर्स अब्दुर्रहमान बिन औफ ने ये बिजनेस भी शुरू कर दिया, और इसके बाद आखिर अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने मदीना में कपड़ों, लेदर और परफ्यूम्स का बिजनेस दोबारा शुरू किया। और ये वही बिजनेस थे जो मक्का के लोगों ने अब्दुर्रहमान बिन औफ से जबरदस्ती छीने थे। आखिर अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु का बिजनेस इतना बढ़ गया, यहाँ तक कि अब्दुर्रहमान बिन औफ के बड़े बड़े काफले
मदीना से यमन और शाम आने जाने लगे। अब फाइनली मुसलमानों का सबसे बड़ा बिजनेसमैन अब्दुर्रहमान बिन औफ यहूदियों के सबसे बड़े बिजनेसमैन अबू राफे को टक्कर देने के लिए तैयार थे। इस यहूदी और अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु के बिजनेस करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट था। यहूदी आपस में सस्ती चीजें और दूसरों को महंगी चीजें बेचते थे, लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ के काफलों में सबको एक ही रेट में चीजें बेची जाती थी। यहूदी बिजनेसमैन हमेशा अपना सामान बेचते हुए हमेशा झूठ बोला करते थे और खराब चीज भी महंगी बेचते थे, जिसकी वजह से लोग इनके काफलों को ट्रस्ट नहीं करते थे। जबकि अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु पहले ही कस्टमर्स को बता देते थे कि कौन सी प्रोडक्ट में क्या क्या मसले हैं, जिससे लोग अब्दुर्रहमान बिन औफ के काफलों को ज्यादा ट्रस्ट करते थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ अपने बिजनेसेस के लिए किसी से कर्जे नहीं लेते थे। हर बिजनेस अपने पैसों से किया करते थे, चाहे जितना भी छोटा क्यों ना हो, जिसे आज बूटस्ट्रैपिंग बिजनेस कहते हैं। और अब्दुर्रहमान बिन औफ के काफलों में कस्टमर्स के हर मसले को उसी टाइम फिक्स किया जाता था, जिस तरह आज भी वॉलमार्ट और अमेज़न जैसी कंपनीज में होता है। Thank you for calling Select Voice Call. और इन्हीं स्ट्रेटजीज की वजह से आखिर अब्दुर्रहमान बिन औफ सारे यहूदियों को पीछे छोड़ के मदीना के सबसे अमीर आदमी बने। ये सब देखकर एक दिन किसी ने अब्दुर्रहमान बिन औफ से पूछा कि आखिर आपने इतना बड़ा बिजनेस बनाया कैसे? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने कभी भी ऐसा कोई भी पत्थर नहीं उठाया जब तक मुझे ये उम्मीद ना हो कि उस पत्थर के नीचे गोल्ड होगा। ये तो थे अब्दुर्रहमान बिन औफ के बिजनेसेस, लेकिन इस सब के अलावा भी अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर जंग में बहादुरी से खड़े थे और अपने इसी बिजनेस के दौलत से मुसलमानों की इस आर्मी को सपोर्ट करते रहते थे। यहाँ तक कि जंगे ओहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिफेंड करते हुए अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु पर तलवार के 21 वार किए गए और वो इतने जख्मी हुए कि ओहद की जंग के बाद वो कभी भी सही तरह नहीं चल सकते थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने ट्रस्टेड आदमी थे कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने पास बुलाया, उनके सर पर खुद अपने हाथों से काली पगड़ी बांधी और फिर उन्हें मुसलमानों की एक फौज का लीडर बनाकर अरब का एक इलाका फतह करने के लिए रवाना किया और उन्होंने वो इलाका फतह कर लिया। जिसके बाद जब मुसलमान खैबर की जंग जीते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान बिन औफ को खैबर के 2 बड़े बाग गिफ्ट दिए। लेकिन खैबर के जंग के बाद अब्दुर्रहमान बिन औफ की पुरानी जिंदगी का एक वाकया दोबारा उनके सामने आया। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जनरल खालिद बिन वलीद को अरब का एक कबीला फतह करने के लिए भेजा। खालिद बिन वलीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से फुल स्पीड उस कबीले की तरफ रवाना हुए, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्होंने किसी कंफ्यूजन की वजह से वहां के कुछ लोगों को मारने का हुक्म दिया, जिसे हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके। इन लोगों को मारने की वजह से कुछ सहाबा खालिद बिन वलीद से नाराज थे, क्योंकि ये वही कबीला था जिसने इससे बहुत साल पहले मक्का के एक काफले पर हमला किया था। जब अब्दुर्रहमान बिन औफ के वालिद अपने दोस्तों के साथ एक सफर पर जा रहे थे, अरब के एक बदमाश कबीले ने उन पर हमला करके उन्हें और उनके दोस्त को मार डाला और उनके ये दोस्त खालिद बिन वलीद के चचा थे। जैसे ही खालिद बिन वलीद वापस मदीना पहुंचे, अब्दुर्रहमान बिन औफ सीधा उनकी तरफ बढ़े और कहा कि मुझे लगता है तुमने इस कबीले के लोगों को सिर्फ इसलिए मारा है ताकि तुम अपने चचा के खून का बदला ले सको। खालिद बिन वलीद इससे कुछ ही अरसा पहले मुसलमान हुए थे, तो खालिद बिन वलीद ने अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु को सख्त जवाब दिया और इस तरह इन दोनों की बहस बढ़ती गई। और ये बहस इतनी बड़ी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इन दोनों सहाबा के पास आए और जब उन्होंने खालिद बिन वलीद को अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ बहस करते हुए देखा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद से कहा कि मेरे सहाबा को कुछ मत कहो। अगर तुम ओहद के पहाड़ जितना सोना भी अल्लाह की राह में खर्च करो, तब भी तुम मेरे सहाबा के बराबर नहीं हो सकते। अब यहां मसला ये कि खालिद बिन वलीद और अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों सहाबा हैं, लेकिन इन दो सहाबा में फर्क है, क्योंकि अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ उस वक्त दिया था जब सिर्फ थोड़े लोगों के अलावा
कोई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था, जबकि खालिद बिन वलीद तब मुसलमान बने थे जब इस्लाम काफी मजबूत हो चुका था। मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरों में अब्दुर्रहमान बिन औफ की इतनी इज्जत थी कि एक दिन जंगे तबूक के मौके पर जब सुबह की नमाज का वक्त हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां नहीं थे, ये देखकर मुसलमानों ने अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना इमाम बनाया और उनके पीछे नमाज शुरू कर दी। जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए पहुंचे, मुसलमान पहले ही नमाज की एक रकात पढ़ चुके थे, तो इस नमाज को रोकने के बजाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अब्दुर्रहमान बिन औफ के पीछे नमाज के लिए खड़े हुए। जैसे ही नमाज पूरी हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज पूरी करने खड़े हुए, तो ये देखकर सारे मुसलमान डर गए कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन अपनी नमाज पूरी करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे कहा कि तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक किया है। इस तरह अब्दुर्रहमान बिन औफ ऐसे अकेले इंसान थे जिनके पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नमाज पढ़ी हो। और इस जंगे तबूक में अब्दुर्रहमान बिन औफ ने बहुत सारा सोना, बहुत सारे ऊंट और घोड़े और अपने माल का आधा हिस्सा मुसलमानों की फौज के लिए डोनेट कर दिया था। इस फौज के लिए अब्दुर्रहमान बिन औफ से सिर्फ एक ही सहाबी ने ज्यादा डोनेशंस दी थी और वो थे हजरत उस्मान। अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु के इन्हीं कामों की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी सुनाई थी। और अपनी वफात से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक बीवी से कहा था कि जो भी मेरे बाद तुम्हारा मतलब उम्महातुल मोमिनीन का ख्याल रखेगा वो एक सच्चा मुसलमान होगा। और इसके कुछ ही अरसे बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सारी उम्महातुल मोमिनीन का हमेशा अब्दुर्रहमान बिन औफ ही ख्याल रखा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद अब्दुर्रहमान बिन औफ मुसलमानों के सारे खलीफाओं के सबसे बड़े मिनिस्टर्स में से थे। और हजरत उमर ने अपने बाद खिलाफत के 6 बड़े सहाबा में अब्दुर्रहमान बिन औफ को भी नॉमिनेट किया था, जिसे हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। इतनी बड़ी खिलाफत का मिनिस्टर होने के साथ साथ अब्दुर्रहमान बिन औफ का बिजनेस भी बढ़ता जा रहा था। और कहा जाता है मदीना का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ अब्दुर्रहमान बिन औफ के बिजनेस से चलता था। ये वही मदीना था जहां कुछ ही साल पहले अब्दुर्रहमान बिन औफ अपना सब कुछ छोड़कर खाली हाथ आए थे। और आज वो इसी मदीना से दुनिया के सबसे अमीर आदमी था। लेकिन इतना अमीर आदमी होने के बाद भी उन्होंने कभी भी अपने आप को किसी से ऊपर नहीं समझा, बल्कि उन्होंने अपनी ही बहन की शादी एक ऐसे सहाबी से कराई जो किसी जमाने में मक्का के एक गरीब वेल तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? यार इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी जबरदस्त वीडियो थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि यार मतलब वीडियो थी कोई 20-22 मिनट की, लेकिन इतना मजा आ रहा था वीडियो देख के कि मैं क्या ही बताऊं। आपने ये देखी कि हमने ये देखा कि आजकल जो दुनिया के अमीर तरीन शख्स हैं और उनकी निस्बत हमने देखा कि मुसलमानों में एक उस टाइम पे अमीर तरीन शख्स गुजरा जब दौलत बिल्कुल भी ना होने के बराबर थी। देखें, उनके पास इतनी दौलत थी कि लोग थोड़ों से, कुल्हाड़ियों से सोने की चीजें तोड़ते थे। देखें, मक्के में वो कितने मालदार शख्स थे, लेकिन जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया, इस्लाम की कुर्बानी के लिए उन्होंने अपनी बिलियन डॉलर्स की जो दौलत थी, सोना चांदी क्या कुछ छोड़ दिया सिर्फ इस्लाम की खातिर। आज अगर कोई मुसलमान हो उसको बोले या ये करो या करो, मुझे नहीं लगता कि वो अपनी इतनी ज्यादा दौलत छोड़ेगा। लेकिन जो पक्का मुसलमान होगा वो डेफिनेटली हजरत अब्दुर्रहमान की तरह छोड़ छाड़ के चला जाएगा। लेकिन देखें, उन्होंने इस्लाम के लिए अपनी इतनी ज्यादा दौलत छोड़ दी और जब वो मदीने में गए तो उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया, बिल्कुल जीरो से। और अल्लाह ताला ने उनके कारोबार में इतनी ज्यादा बरकत डाली कि एक टाइम आया वो देखें कि मदीने की आधी रियासत उनकी दौलत से चलती थी। माशाल्लाह यार, अल्लाह ताला ने उनको इतना नवाजा कि देखें आधी रियासत उनकी दौलत से चलती थी। जंगों में उन्होंने हाथी, ऊंट और क्या कुछ डोनेट कर दिया करते थे। और सबसे बड़ी चीज ये कि उन्होंने कभी भी अपनी दौलत का गरूर नहीं किया, कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं
सबसे ज़्यादा दौलतमंद इंसान हूँ, मेरा रुतबा ये होना चाहिए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब भी जाते थे, आवाज़ नीची करके और एक गुलामाना तौर पे उनके सामने हाज़िर होते थे। कभी ये नहीं शो किया कि मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, मेरी रिस्पेक्ट ये होनी चाहिए, मेरी रिस्पेक्ट ये होनी चाहिए। हमेशा झुके रहे। और देखें उनकी आजिज़ी का आलम ये था कि उन्होंने अपनी बहन की शादी एक गुलाम से तय कर दी, हज़रत बिलाल हबशी से, कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं इतना अमीर तरीन शख्स हूँ, मैं जैसे कि आज के टाइम में चलता है कि वो क्या कहते हैं, हम अपने स्टेटस के बंदे से शादी करेंगे, स्टेटस के बंदे से रिश्ता तय करेंगे। उन्होंने अपनी बहन की शादी एक गरीब गुलाम से तय कर दी। तो ये होती है ईमान की ताकत, ये होती है इस्लाम की कुव्वत। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।